Hi guys, a very good evening to all of you. Welcome to Oliveboard's YT session on your last minute tips for IBPS Clerk Prelims exam. So quickly everybody join in. I would say share the session first so that we can begin. Very good evening. So we have Nikita ma'am with us right now. Yeah. Yes, good evening guys. I hope everybody is doing well. तो कल एग्जाम है and we must be anxious that what should be the strategy and some of us may be feeling very nervous about the examination. तो थोड़ी बहुत nervousness एग्जाम से पहले होती ही है. That's absolutely okay. मुस्कान good evening, सुषमा good evening everyone. Guys please एक बार share कर देना सबके साथ stream को ताकि सबको पता चल जाए कि session start हो गया है. ठीक है? Good evening everyone. So as expected, मतलब मैं यही expect कर सकती हूँ that we are not going to see anything new in this reasoning section. ठीक है, कल कुछ बहुत नया नहीं देखने को मिलेगा. And we have already covered a lot in the classes. We had these classes that is 6 days 7 marks, right? तो हमने already बहुत practice कर ली है. Don't be nervous. Just give your best shot. It is going to be well. निकिता मैम क्या सो सही अगर मेरा एग्जाम कल बुरा हुआ तो मैं नदी में कूद के मर जाऊंगा. Oh God. नहीं ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी. और डोंट वरी आपका एग्जाम बुरा नहीं होगा. ठीक है, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, गो विद द बेस्ट माइंडसेट. ऐसे सोच के मत जाओ. ठीक है, अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाओ. एवरीथिंग विल बी गुड. यू हैव बीन प्रिपेयरिंग वेल. ठीक है, थोड़ा बहुत डर लगना इट्स ओके, बट डोंट बी सो नेगेटिव. It's okay. I think we can start with section-wise strategy without wasting all of your time. I know all of your time is very precious. Tomorrow you're writing the exam. So we can start section-wise. Nikita ma'am, would you like to start with reasoning? Absolutely, ma'am. So if we talk about the reasoning, guys, we will have 35 questions and 20 minutes. That's very less, we know, right? But if we talk about IBPS Clerk, the level of the questions will be such that you will be able to complete these questions, right? हो जाएगा. आराम से 35 questions in 20 minutes is absolutely doable. You will have around 60% of the questions from puzzles. अब puzzles में एक puzzle बनाओगे 2-3 मिनट में 5 question हो जाएंगे, right? So you can see that you are completing 5 questions in 3 minutes, and that's absolutely okay, right? So it depends on the number of questions. So if you are able to complete, let's say 20-23 questions in the first 15 minutes, or let's say 12 to 15 minutes में कर लिए हैं, that means the rest of the miscellaneous questions can be done in the rest of the time. तो इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Go in the same sequence. कल मैंने एक अपलोड भी किया था वीडियो that you should go in the same sequence. Some people, what we do, we are in the habit of skimming the complete paper. Guys, that is important to do in your mains examination. Mains में question picking के लिए अपने पास time होता है. अब prelims में है ही नहीं, 20 minutes है, उसमें से अगर 2 मिनट skim करोगे पूरा पेपर, फिर सोचोगे कि क्या करूंगा, तो 2-3 मिनट तो निकल गए. So you are left with only 17 minutes. So that is, it's better to go in the same sequence. करते चलो जिस हिसाब से आ रहा है, go in the same sequence, attempt the questions. Let's say if you are coming across something very tricky or something that is lengthy, कोई ऐसा question रास्ते में बीच में मिल गया, you can skip that for that particular moment and you can do it in the end. तो उसको end में करो. That's absolutely okay. ठीक है, expected ही होगा. Don't worry, Navneet, there will be nothing that is very unexpected. Everything will be of the similar kind. अगर reasoning की बात करूँ, you will have normal puzzles. You will have some puzzles with 2 cases, 2 या 3 maximum. 2 cases में generally आपके puzzles बन जाएंगे. One of the cases will be eliminated very easily. You may have one variable in there. उससे ज़्यादा नहीं आएगा. और अगर मान लो by chance आता भी है, तो please keep that particular puzzle for the end. Apart from that, we can expect some questions like syllogisms में से आएगा ही आएगा. Inequality आएगी, direction sense हो गया, blood relation, coding decoding, Chinese coding decoding, which is very scoring again, alphanumeric series, miscellaneous question में word formation. तो इस तरह के questions आपके आएंगे ही आएंगे where you can score a lot. तो बिल्कुल उन questions को अच्छे से attempt करो. Go in the same sequence. Do not be worried. हो जाएगा. ठीक है, प्लीज क्वेश्चन ढूंढने का टाइम उसमें मत लगाना. और पजल्स में बहुत लोग क्या करते हैं, दे राइट डाउन द हिंट्स. दैट इज आल्सो वन थिंग दैट यू नीड टू डू इन योर मेंस एग्जामिनेशन. देखो मेंस और प्रीलिम्स में डिफरेंस होता है टाइम का.
प्रीलिम्स में इतना टाइम नहीं है कि आप पहले 2 मिनट में हिंट्स लिखो फिर 2 मिनट में सॉल्व करो. इट्स बेटर टू डायरेक्टली सॉल्व इट. इतना इजी पजल होगा, उसको डायरेक्टली सॉल्व करते चलो, देखोगे कि केस में बन ही जाएगा. यू डोंट नीड टू राइट डाउन द हिंट्स कंप्लीटली फॉर योर प्रीलिम्स लेवल पजल्स, राइट? सो सेव टाइम, जहां भी सेव कर सकते हो बिल्कुल सेव करो. ठीक है. सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए नवनीत? आई विल से दैट इन रीजनिंग यू विल बी एबल टू डू ऑल 35 क्वेश्चंस, बिल्कुल कर सकते हैं. बट 30 प्लस बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. इतना इजी लेवल होगा पेपर का दैट इन रीजनिंग यू विल बी एबल टू डू एटलीस्ट 30, राइट? सो मैम, व्हाट डू यू फील अबाउट द इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश के बारे में आपको क्या लगता है? Again, one thing which I will, of course, I'll say the same thing which you mentioned here twice. I think attempt sequence, like Nikita ma'am is focusing on this one part. I think it is very important. Attempt sequence, even for English, I feel you can go sequence wise in the paper. You do not, because it is clerk level, because it is easier than other PO pre-exam or any other exam. Speed will matter, and really that is the correct thing. You should not waste time in looking for questions. You can go sequence wise. You will have enough time for the section, because there will be some questions, and there will, in fact, there will be many questions which will be very, very less time consuming, like single sentence error spotting or word interchange, or single phrase questions which can be easily done through elimination. Then we will have your spelling questions. So there will be many question categories in the section overall, which will be very, very easy to do, not at all time consuming. So I would say you go sequence wise. As far as RC is also concerned, which will definitely be there in your exam, it might be a bit lengthy, but the language will be simple to understand and with direct questions. So you can attempt it easily. So suppose in the beginning you get these questions, right? Where you have matched the following or word interchange or spelling questions. You attempt those first, and you know right now you have saved enough time for RC. So do not panic when you see reading comprehension, which is a lengthy one. You can still do it because language is much simpler. We have done enough practice in our sessions also, which is exact clerk level. So that should not be a problem. The thing that you have to remember is go sequence wise. Second thing, use elimination in your answers. Try to eliminate from the options and then mark your answer. Also, I would say avoid silly mistakes. Usually it happens, and when the paper is easy, we tend to make silly mistakes. So read your pattern, question pattern very carefully, answer and confirm before marking your answer. Check other options also. Okay, so the worry is, what I feel mostly, that people, because to maintain speed, or when they are quick or when they know the answer, they tend to do silly mistakes also. Avoid that, I would say. Okay, and don't compare your mock scores now, and this is good enough. Okay, you can definitely, you have a good chance of clearing the exam. See, attempts are usually more when we talk about clerk level. So try to maintain that speed. I have told you this earlier also. Okay, so try to maintain that speed, because attempts will be a lot. And do not worry about any, when you're doing the section, just focus on the question you are attempting. That is it for English. I don't think any new pattern or twisted question will be there. We are not expecting that. So whatever we have done in the classes, if you have followed that, practiced enough, then yeah, you just need a positive mindset and you can do really well. That is what I would say for English. Then now Vivek sir will talk about the quant section. थैंक यू मैम, बहुत देर से वेट कर रहा था. देखो यार, जो स्ट्रेटजी के बारे में होता है वो लगभग निकिता मैम, हर्षिता मैम ने ऑलरेडी बात कर ली. क्योंकि एग्जाम है ये क्लर्क का, तो सेव अटेम्प्ट की बात की जाए, जैसे निकिता मैम कही 35 आप कर सकते हो, और कुछ नया पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो सेम एज क्वांट भी. आप क्वांट में, अगर आप क्वांट अच्छी भी नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आप 30 आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, 35 भी अटेम्प्ट कर लोगे. और सबसे अच्छी बात बताई गई कि वन गो में यहाँ पे सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि देखो, पीओ में जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा, आईबीपीएस पीओ जब हुआ और तुम्हारा एसबीआई पीओ हुआ, तो वहां जितने भी बच्चों से फीडबैक आया, वहां हमने ये पाया कि क्वेश्चन चॉइस बहुत बड़ी मैटर कर रही थी, कि क्वेश्चन साइड के साथ साथ एक्यूरेसी आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है. लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा, स्पीड भी, एक्यूरेसी ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक्यूरेसी के साथ स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करेगी. अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके देखोगे कि लोग आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किए, और सीरियसली मैं बताऊं कि अटेम्प्ट होते हैं और अटेम्प्ट होंगे आपसे भी. और अभी एक क्वेश्चन आया था कि सर कि मॉक में आपके 60, 69 आ जाते हैं, है ना, 70 प्लस. तो जैसा हर्षिता मैम ने कहा कि भाई देखो,
अब कल एग्जाम है, अभी अगर आप ये सोच के दिमाग खराब करोगे कि इसमें मेरे 69 आते हैं, 70 नहीं पहुंच पाते थे हम, तो आप गलत कर रहे हो। आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाना चाहिए। और प्लस आपने इतनी तैयारी कर रखी है, आप क्लासेस में भी आते हो और आप तैयारी कर रहे हो, अपने मॉक टेस्ट भी लगाएं, जब आप इतना बता रहे हो तो मॉक भी लगाएं, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। बस एक बात का याद रखना कि यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करेगी एक्यूरेसी के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप 20 मिनट्स में, मैं कह रहा हूँ कि क्वांट में भी आप 30+ लगा सकते हैं। बस एक सजेशन ये है कि वैसे तो जैसा कि निकिता मैम ने भी बोला था कि आप वन गो में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर जैसे कि आपका ये, मैं क्वांट, स्पेशली क्वांट की बात करूंगा, किन्हीं बच्चों को लगता है कि नहीं मेरा क्वांट उतना अच्छा नहीं है, आई एम वीक इन क्वांट, तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग स्पीड मैथ से कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम हमें नहीं देना है कि देखने में स्पीड मैथ्स कहाँ है। 30 सेकेंड में 5 के 4 के डिफरेंस पे कॉलम में क्लिक कर करके आप देख लेंगे कि आपका स्पीड मैथ यानी कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और सीरीज कहाँ है, इसको पहले निपटा लीजिए। क्योंकि जब आप ये 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्पीड मैथ से, और जब आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे 7 to 8 मिनट में, देन यू फील सम कॉन्फिडेंस, और आप एग्जाम में और अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपकी डीआई भी इतनी ईजी आएगी। डीआई को भी वन गो में करना है। डीआई अगर आपके स्पीड मैथ्स के बीच में आ रहा है तो आप उसको निपटा दीजिए। सिंपल सी बात है कि आपकी जो डीआई आने वाली है वो वन गो में हो जाएगी और वो बहुत इजी आएगी। और सबसे लास्ट में अर्थमेटिक अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डीआई में अगर 2 मिनट देते हैं तो उससे 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। Sir, one student is writing that tomorrow we will have 2 languages on the screen for the first time in IBPS Clerk. Interface could trouble us in speed aspect. Venkat Deko, that is going to be same for everybody. If it is an interface change, it is going to be constant for everybody. So what is hampering your speed will be hampering the other person's speed as well, right? So don't worry about that. It is a constant that is not going to change for any particular person. So jo cheez same hai, don't worry about that, okay? And so guys, do not panic, right? And let's say if you agar dikh raha hai, if you see that it is a lot of cluttering is there and you have to scroll a lot, that's okay. It may decrease your speed, that's okay. It may decrease your speed a bit, but still the paper is going to be on the easy level. It is not going to be something that is very difficult, right? Maybe the interface may vary, but that is going to be same for everybody, so do not worry about that. सैनी सर कह रहे हैं विवेक सर प्लीज टेक अरिथमेटिक। हाँ, इस वीक प्लान किया है, अरिथमेटिक पे भी क्लास होगी। अभी तो स्पीड मैथ पे हो रही थी, क्योंकि अभी देखा जाए अभी नेक्स्ट वीक भी आप लोगों का एग्जाम है और बहुत बड़े नंबर में एग्जाम होने वाला है ये नेक्स्ट वीकेंड में, तो डोंट वरी, उसके लिए हो जाएगा। Viraj and Durgesh are saying that they are weak in English. You guys are attending my classes and you are attending 28, 29 out of 30, and this is weak. Very nice, Viraj. Okay, so you can attend 30 out of 30. The 1 mark, you just check where you are losing that 1 mark. You can actually attend 30 out of 30. And I don't think Durgesh is also Durgesh is also not bad with English. What I feel in classes, you have been regular, so I think you can do well in English. I think Durgesh, you as well, right? बस यही, हाँ देखो सबसे जरूरी होता है ना, ये कहते नहीं है बड़े से बड़े काम के लिए भी एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और अपनी प्रिपरेशन को हमेशा बैक किया करो यार, तुम लोगों ने बहुत प्रिपेयर किया है, क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा है, और हमने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से लैग करोगे। बस एक पॉजिटिव याद रखना कि आपको ज्यादा ओवर क्या बोलते हैं स्टडी की भी अब जरूरत नहीं है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी हम ओवर स्टडी कर लेते हैं ना, वो भी नुकसानदायक होती है। कि मैं कुछ देखता था, मैं जब छोटा था, लोग जा रहे हैं ऑटो में, टेम्पो में बैठे हैं, उसमें भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि जब तक माइंड फ्रेश लेके जाना एग्जाम में, जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। मशीन अगर दिन भर चलती रहती है ना तो वो हैंग होने लगती है। एकदम फ्रेश लेके जाओ, एकदम कूलेंट करके। जो अभी सर ने बोला प्रदीप, वो आपके लिए भी था। जैसे आप बोल रहे हो कि आप बहुत एक्स्ट्रा नर्वस होते हो एग्जाम में, तो बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ जाओ। और व्हाट वर्स्ट कैन गो, इफ यू गो विद दिस एटीट्यूड, आई थिंक यू विल डू वेल। व्हाट सबसे ज्यादा खराब और हो ही क्या सकता है। तो मतलब एकदम चिल होके एग्जाम देना। जब आप कर लिया है प्रिपरेशन, आई डोंट थिंक यू शुड स्पॉइल योर एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी. So I think go with a very positive mindset and just give your 100%. Don't think about, probably you're thinking too much about the result. कि क्या होगा, will I get selected? You are thinking too much. Just give your 100%, I feel. Okay. Kavin, thank you so much. I look beautiful. Okay.
Right. हाँ. So As after always. long time somebody mentioning this, very very thank you. लोकेश सर कहाँ है? लोकेश सर अभी लीव पे हैं. हमारे साथ विवेक सर है. विवेक सर आपको सब पूरा ज्ञान दे देंगे क्वांट का. आप उनसे पूछिए सारे सवाल अपने. और दूसरी चीज, इंग्लिश के लिए जो बोल रहे हैं कि नहीं होता है या इंग्लिश टफ लगता है, इस एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आने हैं. सिंगल लाइनर एरर, स्पेलिंग्स, और आपका हो गया ये सिंगल जहाँ पे अरेंजमेंट पूरा दिया वो पैराजंबल. आरसी भी ऐसा लैंग्वेज बहुत टफ नहीं आएगा. तो डोंट गो विद दिस एटीट्यूड कि मेरा वीक पॉइंट है या मेरा वीक सब्जेक्ट है. अगर ये पहले से ही सोच के जाओगे तो नहीं होगा. आपको हर सेक्शन में अपना 100% देना है. कोई यहाँ पे क्लर्क में ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पेपर आना. अगर उतना आपने प्रिपेयर किया बेसिक्स तो डेफिनेटली आप कर पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम लाइक स्कोर भी कर पाओगे. क्योंकि होते हैं क्वेश्चन आपके बहुत इजी आएंगे. और इवन जो तुम्हारा माइंडसेट है आप लेके जाते हो कि नहीं मेरा 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 ये टफ है, मेरा ये वीक है, लेकिन आप एग्जाम देखने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा. लेकिन आप लेके जाओगे तो वो अचानक आपको, जैसे होता नहीं कभी कभी हम सोच के बैठे नहीं हमसे ये नहीं होगा, अचानक मिल जाता है तो हम संभाल नहीं पाते. तो आप जाइए एकदम मन से, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाइए, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए. मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप लोग 30+ सब में करके आओगे, है ना. 80-90 आप कर लोगे आराम से. इंग्लिश में सर 30 आउट ऑफ 30. हाँ होंगे मैम. बच्चे लिख रहे हैं, आपने मेहनत कर रखी है तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा. अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर यू लीव गाइस, हम लोग कल एनालिसिस कर रहे हैं. तो आईबीपीएस क्लर्क प्री का आपको ऑलरेडी फीडबैक मिल जाएगा. जिनका एग्जाम दूसरे स्लॉट्स में है, फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट नहीं है, आप सबको एक आइडिया मिल जाएगा. हाउ विल बी द पेपर, व्हाट विल बी द लेवल, काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन ईच सेक्शन. तो सबसे पहले आप देखना हमारा एनालिसिस स्टार्ट होगा कितने बजे? 9:30. You be there at 9:30 only. You wait for us. Exact analysis आपको हमसे मिलेगा और यही Oliveboard प्लेटफॉर्म पे. So guys, all those who are watching, okay, RC story based जरूरी नहीं है story based होगा. क्या वो पहले attempt करना है? Even if you go sequence wise, you will have enough time for RC. So attempt it somewhere in the middle. That will do. Okay. तो मैम अभी अगर हम बात करते रहेंगे तो बच्चे तो बात करते रहेंगे. बस हम अपनी तरफ से तो हम यही करते हैं कि भाई ऑल द बेस्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ, एकदम रॉक अच्छा, करके. विराज बोल रहे हैं बस ऑल द बेस्ट बोल दो. तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. और निकिता मैम आप इतना चुप क्यों हैं? आपके भी जो मन में है आप वो बोलिए. निकिता मैम प्लीज. नहीं, मुझे अपने स्टूडेंट पे बिल्कुल बहुत भरोसा है कि इतना पढ़ चुके हैं कि अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. दे ऑल नो दैट दे विल बी, अब इनके रिजल्ट बोलेंगे. कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट दे विल बी बिल्कुल डूइंग आपके रिजल्ट बोलेंगे. यस, मैं क्या बोलूं, उनका रिजल्ट ही कल बोलेगा. So absolutely guys, all the very best from my side. Just one thing, that please read the instructions very very carefully. Instructions नहीं पढ़ा, silly mistake कर दिया, ये मत करना. फिर आके फिर कहोगे कि मैम आता था लेकिन गलत कर दिया. वो चीज नहीं करना, ठीक है. बस just be careful, don't avoid the silly mistakes. Everything will be fine. गाइस फिर जो हर्षिता मैम ने बताया कि कल हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में है, प्लीज आपके बिना एनालिसिस पॉसिबल नहीं है. तो प्लीज अपने आप को पार्टिसिपेट कीजिएगा और हमें कॉल कीजिएगा एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस. वैसे भी सर हम लोग इस बार इन लोगों को बता देते कि हम लोग सेंटर से लाइव जाने वाले हैं. Yes, absolutely. Lokesh will be there from the center, so he will be live from the center talking to students there. So please तो आप ये सोच लीजिए कि सबसे एग्जैक्ट मिलने वाला है Oliveboard पे एकदम सबसे पहले, क्योंकि अगर एक भी बच्चा ही बाहर आएगा सेंटर से सबसे पहले हमारे साथ कनेक्ट होगा. हाँ, तो आपको पहले ही आना है. पहले ही आपको YouTube चैनल Oliveboard पे जैसे ही हुआ, लाइक हमने टाइम बता दिया, आप लोग कब आओगे? 9:30 आपको बैठ जाना है चैनल पे. तो हम उसके बाद आपका वेट करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे और एग्जैक्ट एनालिसिस सेंटर से आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो गाइस आज के हम तो ऑल द बेस्ट गाइस, डू वेल और आप लोग अच्छा करोगे. ऑल द बेस्ट गाइस. So all the very best guys.